How we got भैया welcome to the episode of Ask Gajit Swag. Sorry, it's been a very long time. I had been traveling पिछले 6 साढ़े 6 हफ्तों से और एक ही एपिसोड कर पाया था, वो भी इसलिए क्योंकि मैं ह्यूस्टन में कुछ ज़्यादा दिनों के लिए था, तो वो बीच में 3-4 घंटे की विंडो निकल आई थी। लेकिन उसके अलावा इतना मेरा इन एंड आउट रहा। मैं बहुत सारे शहरों में गया, ह्यूस्टन, डैलस, ऑस्टिन, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, डीसी, हाँ 6 शहरों में। और ह्यूस्टन डैलस मेरा कोई 4-5 बार बीच में आना जाना लगा रहा। तो बिकॉज मैं कहीं एक जगह बैठ नहीं पा रहा था, तो ये शूटिंग नहीं हो पा रही थी। और फिर उसके बाद आई हैड टू फ्लाई बैक, मगर मेरा दिल बिल्कुल नहीं था लंबी 24 घंटे की फ़्लाइट लेने का। तो पहले मैंने एक लेग लिया दुबई का और 3 दिन गुजारे, और फिर उसके बाद आज सुबह ही वापस आया हूँ। और सुबह क्यों आया हूँ? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा अक्सर आजकल रोज़ाना ट्रैवल ग्रुप्स में एंड अदरवाइज शेयर हो रहा है कि रात को जो फ़्लाइट्स आती हैं कराची में, फिर वो घर जाते थे लौट जाते हैं। तो आई डेंट वांट टू बी वन ऑफ देम, तो मैंने सुबह की फ़्लाइट ली। अब सुबह की फ़्लाइट लेने के लिए, सुबह की थी 7:30, उसके लिए पूरी रात जागना पड़ा। एंड आई एम लाइक सुपर स्लीपी, लेकिन मतलब चलो कुछ नहीं तो एक आध सवाल तो कर ही सकता हूँ। सो हियर वी आर। बाकी है कि हैड अ गुड टाइम, और काफ़ी अच्छी मीटिंग्स रही, लोगों से मुलाकात हुई, शो किया डालस में, दैट वाज वेरी नाइस। ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस। लिल स्वैग से मिला मैं तकरीबन 6 महीने बाद, और इट वाज फन या। और इसके अलावा अपडेट्स काफ़ी अच्छी हैं। आज आया सुबह ऑफिस, अभी तो खैर शाम के 8 बज रहे हैं, तो सारा दिन वो अपडेट्स चलती रही, क्या क्या हुआ पिछले 1.5 महीने में। ऑब्वियसली अपडेट तो रोज़ मिलती है, लेकिन एक ज़रा समरी लेनी होती है टीम से, तो वो भी चलता रहा सारा दिन। खैर, सो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं सवालात की तरफ, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेट्रियन। ओके, हस्बैंड डज शीशा एंड वेप, हेल्प मी टू स्टॉप। Salaam Junaid Bhai, hope you're doing well. I listen to all your podcasts and I love them. I'll get straight to the point. An hour ago, I found out my husband does vape. I have no one to talk to and I'm having anxiety to the level that I'm sweating and shivering while I write this. I really hope you read this as I need a friend to help me. Okay, अभी आपने अभी भी वेप पकड़ा और आप शिवर कर रही हैं। प्लीज डोंट जज मी फॉर फीलिंग दिस वे, आई एम नॉट जजिंग यू। आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट स्मोकिंग, बट आई गेस यू गेट व्हाट यू रन अवे फ्रॉम। Apologies for the long email. I really need to vent and get help as you stopped smoking too. My background: I have known my husband since school days. We were family friends as well. When I met him, he was never into all this. We live in a city in the Middle East, and he has friends who smoke and do shisha. A friend has a setup in his house, and hence it's easy to access. He is a great guy overall. He is responsible and caring and is a great friend and a husband too. As time went by, we ended up in the same university in Pakistan, and I got to know that he has started doing shisha. Here also, he found a friend who does shisha in his home. His habit continued. We used to have a lot of fights and arguments over this, as I was really against smoking since day one. As the time passed by, he used to tell me that he has reduced now, and I believed him. We recently got married, and I found out he does shisha but lies to me about it. We had our first deep conversation on this topic with when his lie got caught, and I agreed to come halfway and accept this reality and give him the space he needs to reduce the habit, but only if he really reduces it and doesn't hide anything from me. Junaid by this step was very difficult for someone who couldn't bear smoking. I have really struggled to accept this, but in return he still dodges me. All I ask from him is to tell me whenever he does it. I no longer fight or argue because I know that won't help. Recently I found out that he uses vape as well. He again made up a story and wasn't honest with me. I'm devastated. How many more lies will there be? I'm not sure. I don't want to ruin a relationship, but his lies are making it happen. He does feel ashamed when he does shisha and still hesitates to tell me because he knows I'll feel bad. I accepted all the truth with an open mind and asked him to please tell me if there's more so I don't find out and get heartbroken again. But it happened again. It's sad to see the person you love with your heart and soul to do this. It hurts to see him slowly take away his own life. It hurts to a point where I'm extremely anxious and I can't function. Please don't say that if I knew this, I shouldn't have married him. I loved him and that's why I supported him to give up and reduce this habit. But I didn't realize that I was being made a fool all along. When you love someone, you support them if they get weak at some point of life. He has supported me in many ways as well.
Leaving is not always an option, and even after all these lies, I'm here to support him, but he doesn't tell me the complete truth. This matter might not even be an issue for some people who think these things are common and cool, but the reality is what is harmful will always be harmful no matter how common it becomes. Please tell me, how can I make him quit all this? Is there any therapy or any medicine that can help? We're planning to start a family soon, but with these habits, I'm not happy to move forward. Thank you for listening. Thank you for your email. और कंसर्न बिल्कुल सही है. जस्ट बिकॉज वेप और शीशा टेस्ट लाइक पाइनएप्पल एंड ग्रेप एंड मिंट डजंट मीन कि वो हार्मफुल नहीं है. सिगरेट पीने में कड़वी लगती है तो वो लगता है कि वो ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन वेप में तो फ्रूटी मज़ा आ रहा है, मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी, तो शायद वो नहीं है. बट दैट्स नॉट ट्रू. इनफैक्ट वेप इज़ फार मोर हार्मफुल, शीशा इज़ फार मोर हार्मफुल. शीशे में तो कहते हैं वो 200 सिगरेट के बराबर होता है 1 घंटे का या 1.5 घंटे का सेशन. और वेप जो है, वेप के अंदर होता क्या है, कभी चलो टोबैको का तो पता ना, वो टोबैको लीफ है, रोस्ट हुआ है, एक प्रोसेस से गुजरा है, एंड इट्स फोल्डेड इन अ पेपर, उसमें टार है, ये है वो है. वेप के अंदर क्या है, वो जो आप इतना सा लिक्विड लेके डालते हैं या आप डिस्पोजेबल वेप लेते हैं, उसके अंदर होता क्या है. फ्लेवर तो कॉन्डम में भी आता है, मगर सिलिकॉन खा तो नहीं सकते ना. इसी तरह वेप में होता क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मेल्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं भाई वो, और लोग पेट्रोल डाल रहे हैं अपने अंदर. अनफॉर्चुनेटली देखने में कूल लगता है, लेकिन भाई कूल कुछ भी नहीं है. कभी आप उन लोगों की वीडियोस देखें जिन्होंने कोई 5-5, 10-10 साल की हैं ये चीज़ें, एंड देन दे गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज. यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई शराब तो नहीं पी रहा, कोई कोक तो नहीं कर रहा या आइस तो नहीं कर रहा. बट सी, इट्स नॉट अबाउट कि वो कर क्या रहे हैं, इट्स अबाउट कि अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. कुछ लोगों, सम पीपल ड्रॉ द लाइन यहाँ पे, कुछ लोगों की लाइन थोड़ा आगे होती है. कुछ लोगों को एक्सेप्ट होती है कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को सिगरेट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती. कुछ लोग होते हैं कि हाँ ठीक है पी रहे हो, बट लाइक कोशिश करो कम पियो, यू नो. तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है. तो यहाँ पे बात है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की. यहाँ पे बात वेप की या शीशे की नहीं है कि वो कितना हार्मफुल है या कितना हार्मफुल नहीं है. दैट्स नॉट द पॉइंट हेयर. और हार्मफुल तो वो है. हाउएवर, रही बात लाइक हाउ आई क्विट स्मोकिंग, तो ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू हैव फैमिली, एंड देन फिर आपको एज के साथ साथ और चीज़ों का भी एहसास होता है. एंड देन ऑब्वियसली मुझे गिल्ट तो होता था. आई बी वेरी ऑनेस्ट. सिगरेट पी के वो एक ओरल फिक्सेशन की आदत तो थी अभी भी. लाइक मुझे रमज़ान में 2 साल हो जाएंगे, और मैंने इसलिए नहीं छोड़ी थी कि रमज़ान था या ये कि रोज़े में आप 12 घंटे नहीं पीते तो वो आसान था. दैट वाज़न्ट द केस. मैंने बस बैठे बैठे छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे से गिल्ट ये हो रहा था कि सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो मेरी, लाइक आई हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, वो पानी की बोतल साथ रख के सोते हैं और सुबह उठते ही 1 लीटर तो खैर नहीं, आधा लीटर तो पी ही जाते हैं पानी, राइट. और फिर जाके धूप में 20 मिनट बैठते हैं और वहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं, सर्केडियन रिदम सही करते हैं. मतलब ऐसे भी दोस्त हैं मेरे. और फिर ऑन दी अदर हैंड मैं था, सुबह उठते ही बिस्तर पे लेटे लेटे पहली चीज़ सिगरेट गोज इनटू माय माउथ. अगर बिस्तर पे नहीं पी रहा तो बाथरूम में पी रहा हूँ. एंड देन ऑब्वियसली बहुत से लोगों को फिर दे डेवलप अ हैबिट, दे कांट गो विदाउट हैविंग अ सिगरेट. तो और फिर रात में भी सबसे आखिरी चीज़ जो मेरी बॉडी में जाती थी वो एक सिगरेट होती थी. तो मैं ख़ुद ही सोचता था कि मैं विलफुली बग़ैर किसी प्रेशर के जहर अपनी बॉडी के अंदर सुबह सबसे पहली चीज़ भी डाल रहा हूँ और रात में भी सबसे आखिरी चीज़ मेरी बॉडी में ये जा रही है. तो मुझे वो एहसास होने लगा. एंड देन ऑब्वियसली यू नो आफ्टर हैविंग माई सन, वो भी एक फैक्टर था. मैं वैसे ही जैसे अभी आपको बताया 6 महीने बाद में उससे मिला 5.5 दिनों के लिए. अब उसकी टेक्निकलिटीज़ भी नहीं जाते जी, क्या मजबूरियां हैं, यहाँ क्यों नहीं बुला लेते, ये कि आई एम नॉट गोना डिस्कस माई फैमिली मैटर्स. कोई वजह ही होगी. नोबडी लाइक्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम देयर फैमिली. तो वो भी एक वजह थी कि यार मैं वैसे ही उसके साथ कम टाइम गुजारता हूँ, तो जो गुजार सकता हूँ उसमें वो भी सिगरेट लेके जा रही है. तो ये वाली चीज़ें जब आप लाइक यू स्टार्ट थिंकिंग थ्रू, तो फिर मैंने जहन में ये बिठा दिया कि सिगरेट बहुत चीज़ है. मैंने उसको ना बिल्कुल उस कैटेगरी में रख दिया. कुछ लोग होते हैं ना, आप कहते हैं यार ये तो बिल्कुल ही फारिग आदमी से बात भी नहीं करनी, और फिर आप नहीं भी करते, राइट. इस तरह सिगरेट को मैंने उसी कैटेगरी में डाल दिया कि यार ये मैंने करना ही नहीं है. अब मेरे
अराउंड बहुत सिगरेट पी जाती है, मेरे बहुत सारे दोस्त पीते हैं, मेरे स्टाफ में भी बहुत सारे स्मोकर्स हैं, मगर मैं उसको अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने देता। और ट्रिगर कभी कभी हो जाता हूँ, कभी कभी दिल भी करता है। अभी मैंने सैन फ्रांसिस्को में 2 कश मार लिए थे, मैं वो गोगलू के साथ खड़ा था, गोगलू नहीं पीता, हमारा एक और दोस्त है वो पी रहा था, तो मैंने लेके ऐसी मूड में था, वी वर रियली हैप्पी, दोस्तों के साथ घूम रहे थे, तो मैं चले यार व्हाटएवर। लेकिन ये कि ख़रीदी नहीं और पूरी भी नहीं पी, उसके बाद पूरा पैक था, ले भी सकता था, कोई कुछ कहता भी नहीं मुझे, बट या तो वो नहीं। आई डिड ट्राई वेप फॉर अ वाइल, बट अगेन फिर वही वाली बात है, मुझे पता ही नहीं इसमें है कि, और मैं पिए जा रहा हूँ और बस मुझे वाटरमेलन का टेस्ट आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। इट यूज टू गिव मी अ लॉट ऑफ हार्ट बर्न, और बात सारी ओरल फिक्सेशन की थी, वो मुंह में कोई चीज़ चाहिए होती है, तो खैर मैंने फिर वो भी छोड़ दी। शीशा कभी कभार, येस इट हैपन्स, स्पेशली इफ़ यूर इन द मिडल ईस्ट, तो वो, बट लाइक अगेन आई डोंट एंडोर्स दैट, ना ही मैं कभी शीशा पीते हुए कोई स्नैप बनाता हूँ। कभी देखिए आपने भाई मेरी स्टोरी शीशा पीते हुए? आई डोंट एंडोर्स इट। शीशे के आसपास बैठा होता हूँ, मैं नहीं दिखाता। तो ज़ाहिर है वो बच्चे इंप्रेशनेबल होते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार वो पी रहे तो कूल चीज़ है तो हम भी पीते हैं, सो आई अवॉइड दैट। सो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि कुछ लोगों को लगेगा ये इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर मेरी नज़र में फिर भी है। कुछ लोगों की लाइंस ड्रॉ होती हैं अगर आप उसको क्योंकि यार पार्टनरशिप का मकसद क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होती हैं अगले की, कुछ चीज़ें आपको ने गिव अप करनी होती हैं अपनी। दैट्स द होल आइडिया अबाउट पार्टनरशिप। सो अगर इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग दैट, इफ़ ही इज़ नॉट ऑनरिंग योर वर्ड इतनी सी छोटी सी चीज़ पे, तो फिर कल को बड़ी चीज़ों पे भी दैट पर्सन माइट नॉट बी देयर फॉर यू। ये होता है असल कंसर्न। तो आप उनको बोलें भाई कोई रिवॉर्ड सिस्टम रख लें, फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपको ऑफिस में बोनस मिले या परफॉर्मेंस अच्छी हो तो चलो फिर देन यू गेट टू हैव अ शीशा, या फिर ये कि महीने में एक बार कर लें या हफ्ते में, लाइक ट्राई टू टेपर इट डाउन। अगर वो भी नहीं होता और अगर वेप भी घर पे आ गया है और अब इसकी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, तो देन देर आर ऑब्वियसली थेरेपीज अबाउट इट जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बट वो ये सब चीज़ें तब होगी जब बंदा खुद विलिंग होगा कि हाँ मैं बदलना चाहता हूँ अपने आप को या अपनी आदतें बदलना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो नहीं बदलना चाहता तो फिर वो बात ये लगे। तो बात सारी है कि भाई बंदा चाहता भी है कि नहीं चाहता। तो अगर वो नहीं बदलना चाहते तो फिर या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर आप बोलें कि भाई दिस इज़ वेयर आई ड्रॉ द लाइन एंड आई हैव अ सीरियस टॉक विद हिम। अगर वो ये समझते हैं कि ये चीज़ बुरी है और आपको धोखे में रखना भी बुरी चीज़ है, तो फिर उसका कोई ना कोई मलाल तो होना चाहिए, या फिर कोई ना कोई एक्शन। लेकिन अगर ये कि हाँ चलो ठीक है पकड़ भी लिया तो क्या हुआ, तो फिर ये चीज़ जो है ना दिस कैन ईजिली ट्रांससेंड इनटू अदर थिंग्स एज वेल। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट सेइंग कि अभी ये कहे तो कल को शराब भी पी रहा होगा, आई एम नॉट सेइंग। मैं कह रहा हूँ जब जब इंसान के जहन में आती है ना कि हाँ मैं इसको मना लेता हूँ कम वर्ट में, तो फिर किसी और चीज़ पे भी होगा ये कि चलो आई विल हैंडल हर, या मैं छुपा लूँगा या मैं रास्ता निकाल लूँगा। तो फिर इंसान को जब वो चोर रास्ते में कंफर्टेबल हो जाता है ना, तो फिर वो मज़ीद इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो हैव अ हार्ट टू हार्ट और बताएं कि भाई ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, एंड जैसा आपने कहा यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली एंड लाइक यू द चाइल्ड वुड नीड अ फादर विद गुड लंग्स, और ये बहुत ज़रूरी है भाई। ये पता भी नहीं चलता ये चीज़ें कब कोलैप्स कर जाती हैं, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड। आई मीन द लंग्स आर नॉट द सेम, एटलीस्ट आई डोंट फील माई लंग्स टू बी द सेम आफ्टर कोविड। बहुत फ़र्क है, और बहुत सारे दोस्तों से भी मैसेज सुना। अगेन नॉट गोना से कि वैक्सीन से कुछ हुआ है, ये कुछ हुआ है, बट ये कि उसका कोई इफेक्ट तो है। तो ना करे यार, अच्छी चीज़ें नहीं है ये। ये होते हैं जवानी के शशके होते हैं, मज़ा आता है करने में, थोड़ा रिबेलियस फीलिंग होती है। और ये एक फजूल की हमने मिथ बनाई हुई है कि जी स्ट्रेस बस्ट होता है हमसे, इससे सिगरेट से कुछ नहीं होता, ये इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। तो ये भी बेकार सी बात है कि जी बहुत टेंशन है काम की तो मैं सिगरेट पी के रिलैक्स हो जाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। ये फिल्मों में बनाया हुआ है। या ये कि लाइक आफ्टर अ कपल हैव सेक्स तो फिर वो सिगरेट पीते हैं, तो वो भी, ये सारी सिगरेट की इंडोर्समेंट्स हैं सिगरेट कंपनीज़ की तरफ से, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज। तो ये सटल मार्केटिंग कर करके जो है एक ये बनाई हुई कि जी इन इन जगहों पे सिगरेट पीना ज़रूरी है, या फिर ये कि इट्स गुड नॉट गुड फॉर यू बट लाइक इट्स मोर रिलैक्सिंग एंड फार मोर प्लीजिंग।
या फिर वट एवर, क्योंकि सिगरेट्स आर नॉट अलाउड टू मार्केट देमसेल्स अदरवाइज, तो ये इस तरह सटल तरीक़ों से घुसते हैं. मैंने लाइक आई सेड अ फ्यू टाइम्स बिफोर, मैंने ड्रू बैरीमोर को देख के सिगरेट पीना शुरू की थी. उसकी एक फिल्म थी होम फ्राइज, वो बड़ी ट्विस्टेड सी फिल्म थी. वो एक लड़की होती है, उसका जिस बंदे से चक्कर होता है उसके भाई से भी चक्कर होता है और उनके बाप से भी हो चुका होता है चक्कर. वो बैक वक्त उनकी स्टेप मॉम भी होती है और बड़ी अजीब फिल्म थी, हैंस द नेम होम फ्राइज. तो उसमें वो एक सीन में एक वो ट्रक में बैठ के बड़े मज़े से सिगरेट पी रही होती. तो मैं मैट्रिक में था, तो मैं भी बड़ा फैसिनेट हुआ था कि यार क्या मज़े से धुआं निकाला. तो मैंने जाके कैप्स्टन ख़रीद ली 1 रुपये की, जो कि आज मुझे पता चला 15 रुपये की हो गई कैप्स्टन. होली शिट, इन माई लाइफ टाइम, हाफ ऑफ माई लाइफ टाइम 15x हो गया सब. तो मैंने कैप्स्टन ली, मैंने पी. फिर वही हिम्मत बढ़ती गई और फिर वो कॉलेज में पी. फिर एक दिन घर में शर्ट उतार रहा था तो शर्ट से गिर गई, क्योंकि लूज़ लेते थे ना, यहाँ पे पैकेट तो लेते नहीं है बच्चे. तो मम्मी ने पकड़ ली. फिर वो घर में आसान हो गया. फिर जब आप कमाने लगते हो तो आप पे बंदिशें और वो वैसी काम हो जाती हैं कि चलो लड़का काम तो कर रहा है, चलो सिगरेट ही तो पी रहा है. तो फिर वालदेन खुद ही रास्ते निकाल लेते हैं कि चलो ठीक है कोई मसला नहीं. तो फिर हिम्मत ऐसी हो गई कि फिर मैं घर में पीने लग गया. मेरे अब्बा को भी पता था मैं पीता हूँ. ज़ाहिर है वो कमरे में आते हैं, स्मेल होती है सिगरेट की. एंड माई डैड स्मोक्ड स्पेरिंगली एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ. तो ज़ाहिर है इन बंदे को तो स्मेल आ ही जाती है. तो ये फिर चीज़ें ना, हाथ इंसान का खुल जाता है. तो आज आपने इन चीज़ों पे ओके कर लिया तो फिर कल पता नहीं क्या क्या चीज़ों पे फिर बंदा फिर चिल ही हो जाता है. तो चिल नहीं होने देना. ठीक है, इस पे बात करें. बात ही तरीका एक वाहिद. अब इसके ऊपर आप शादी तो तोड़ नहीं सकते हैं ऑब्वियसली. जब व्हेन यू लव समवन यू एक्सेप्ट अ फ्यू फ्लॉज एज वेल. अब ये उनका एक फ़्लॉ है. फ़्लॉ होना अलग चीज़ है, लेकिन झूठ और यह चीज़ छुपाना, धोखे में रखना, ये गलत चीज़ है. ये नहीं होना चाहिए. या तो फिर बोलो यार ये मैं करता हूँ और मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, अब बताओ क्या करना है. या तो इस तरह हो. ये ना करो कि छुपा रहे हो या चोर रास्ते निकल रहे हैं. दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट राइट. चलें, आई विश यू वेल एंड आई होप यू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस. थैंक यू. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हथौड़ियों की आवाज़ आ रही है कि बराबर में हमारे 8 महीने से ताजमहल बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है. और रोज़ 8 बजे हथौड़े चलते हैं. हथौड़े, ड्रिल, वैक्यूम, पता नहीं सब चलता है, पता नहीं. Anyway, ruminating about marrying abroad. Hi Junaid sir, I'm keeping my identity anonymous for personal reasons. Hope you're doing well. I'm a keen admirer. अच्छा ये साहब हैं तो मैं ज़रा जेंडर क्लियर कर दूँ. I'm a keen admirer of your content and would like to cordially appreciate you for considering my email for your episode formerly. I'm a data scientist currently residing in the US and earn a hefty amount of money. I acknowledge that whatever you say is an opinion and I'm fully responsible for taking my own decision. Converging our lenses upon the issue at hand. I like the line. I've been thinking about getting hitched, but the issue is that I notice that I'm quite a progressive person who is miles away from his cultural norms. I regularly notice that Pakistanis have an array of norms, habits, and mindsets that would be disastrous for my marriage. I state beforehand that I, by no means, desire to hold Pakistani people inferior to myself, but their shortcomings in them are quite evident. I could talk at length about these issues, but let me articulate my concerns concisely. I detest the lack of morality in people, which reflects in their behavior in their personal life. अभी पिछले दिनों किसी ने 7-Eleven की तस्वीर शेयर की थी और डस्टबिन का मुंह बंद था और उसके ऊपर केले का छिलका और जूस के वो डब्बे रखे हुए थे. एंड it was a देसी एरिया. सॉरी 7-Eleven नहीं था, दुबई की कोई सुपरमार्केट थी, इंटरनेशनल सिटी की, और वहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं. तो वो पाकिस्तानी नहीं किसी ने पोस्ट की थी और नीचे लोग अग्री भी कर रहे थे यार ये हमारे लोग जो है ना डस्टबिन देख के भी दे कांट फकिंग कंप्यूट के इसको ढक्कन उठा के अंदर डालना है या उसके ऊपर रख के सजा के चले गए. एनीवे, तो वो क्या lack of morality, which reflects in the behavior. I am no saint myself, but do possess a basic sense of deciphering between good and evil. Furthermore, I see that the filtering process of Pakistanis for marriage proposals is unreasonable and doesn't allow the fiancés to converse with each other properly about their impending married life. Similarly, fearing society's opinions and taunts backwards and orthodox ways of thinking about matters such as widows,
divorcees adopting children, lack of financial education, ambition, and critical thinking, marriage counseling, expensive marriages, jahez, and men learning basic life skills, etc., are described in the preceding Ask Ganji Swag episodes at the moment, are the problems that trouble me. I also have some personal requirements, such as not having children and a career oriented wife who does not ask me to fulfill her desires and pay for the expenses of the household alone, which is as rare as a diamond in a coal mine. I'm ready to share the chores of the house equally. I feel like if I speak anymore, I'm going to be accused of treason, but you probably get the crux. But on the other hand, the friends that I have discussed this with say that the cultural differences will cause an inevitable divorce and the foreigners are not angels as well. They do have a valid point, but I'm confused about what to do. Should I marry someone outside Pakistan, tolerating the cultural differences, or someone from Pakistan and have to deal with all these issues? My sincere apologies if this email is too lengthy. Hope you acknowledge my issue and respond timely. Thank you for your time. Thank you for your email. It was very nicely written, first of all. Secondly, आपका concern अपनी जगह valid है, which reminds me, I recently met my friend अभी न्यूयॉर्क में, and him and I went to school together. Great guy. और अभी डॉक्टर बना है वो, and he works for New York Jets, and he is a sports scientist, and he teaches the pitchers कि किस एंगल पे बेसबॉल पिच करनी है ताकि आपका रेंज ऑफ मोशन भी सही रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पिचेस कर सके विदाउट इंजरिंग योर सेल्फ. अमेजिंग गाय. सो लाइक अ देसी अंकल, आई आस्क्ड हिम कि भाई मियाँ शादी वादी नहीं की अभी? ऑब्वियसली आप दोस्तों से तो पूछते हैं बिकॉज ऑल अस फ्रेंड्स आर मैरिड नाउ. सो उसने ये बताया कि अगेन अभी दैट वाज हिज ओपिनियन एंड दैट वाज हिज पर्सनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस. सो उसका ये था कि ही इज़ बिन लिविंग इन द यूएस फॉर द लास्ट, आई थिंक सिंस 2005 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 15-16 साल से तो वो उधर ही है. कॉलेज के बाद वो चले गए थे पूरी फैमिली. दे हैड माइग्रेटेड. तो उसका ये था कि लाइक whoever he's come across and like he obviously prefers to marry within the culture. तो उनका कंसर्न ये था कि यार so he told me कि I'm pretty much like you in terms of ना ज़्यादा इधर है ना ज़्यादा उधर है, जिसको लोग कहते हैं टू हराम फॉर रिलीजियस पीपल एंड टू रिलीजियस फॉर हराम पीपल. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो वो थोड़ा सा इजी गोइंग है काफ़ी मामलात में. तो सो व्हाट ही सेड वाज कि व्हाट ही इज़ कम अक्रॉस इन हिज लिटिल एक्सपीरियंस इज़ कि आइदर द पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ रहती है अमेरिका वगैरह में या जिनसे उनके जान पहचान रही है, ताल्लुकात रहे वगैरह वगैरह, either they're too much on the religious side or either they're like too out. मिडिल ग्राउंड नहीं मिल रहा. जिस तरह वो बस समझा रहा था मुझे कि जिस तरह हमारा अपना वो है कि मिडिल ग्राउंड वाला कोई भी नहीं मिल रहा. या तो कोई बहुत ही राइट है या फिर कोई बहुत ही लेफ्ट है, और दोनों सूरतें एक्सेप्टेबल ही नहीं है. इज़ अ ग्रेट गाय डूइंग वेल. ही इज़ स्टिल सिंगल. ही इज़ 39. तो ये दूसरी चीज़ माई डियर फ्रेंड करण शेयर्ड विद मी was a very valid point. और मैं I don't know इससे कितना related है, बट मुझे भी याद है तो शेयर कर रहा हूँ. और it was a very valid point. वो ये था कि जब देसीज NRIs हो गए या OSPs हो गए, ये जब बाहर जाते हैं तो दे ऑब्वियसली फील थ्रेटन्ड अबाउट देयर कल्चर, और फिर वो ज़रा जुड़ के रहते हैं उसके साथ, और फिर रिलीजियस भी हो जाते हैं. अगेन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग बीइंग दैट. टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ थोड़ा सा आउट हो जाती है. एनीवे, तो अपना कल्चर को बड़ा होल्ड करके चलते हैं और फिर अपने बच्चों को भी उस कल्चर में लाते हैं ज़बरदस्ती के भाई इस तरह, बिकॉज उनको होता है कि यार ये तो हमारा बच्चा हाथ से निकल जाएगा, ये तो अंग्रेज़ बन जाएगा, हमारी नस्ल जो है कहीं और निकल जाएगी, हम तो फलाने वगैरह. सो इंडियंस भी ऐसे ही करते हैं. दे प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन अ लॉट. ठीक है, इन मोस्ट केसेस NRIs. होता ये है जब ये बच्चे एक सर्टन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में तो रहते हैं ना, क्योंकि घर के बाहर कुछ और माहौल है, घर के अंदर बिल्कुल पूजा पाठ एंड एवरीथिंग, ये वही सारी चीज़ें. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ बंदा बाहर जाए तो सब कुछ छोड़ दे, नॉट सेइंग दैट, बट बहुत ज़्यादा अगर हो तो व्हेन दीज NRI किड्स गो बैक टू इंडिया, वो अपने कज़न देखते हैं, वो वहाँ तो भाई 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज़ का, वो तो आउट चल रहे हैं. सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान. मतलब यहाँ पे आप अपने कज़न जो बाहर रहते हैं, आप अपने कज़न देखें, मोर देन लाइकली
बच्चे आउट चल रहे हैं यहाँ पे। तो फिर जब वो बच्चे आते हैं पाकिस्तान या इंडिया और अपने कज़न को देखते हैं, वो कहते हैं ये तो हमारे जैसे ही नहीं, ये तो यहाँ रह के संस्कारी नहीं हुए, हमें वहाँ रह के हमारे पेरेंट्स ने संस्कारी किया। तो वो एक अजीब डायमेंशन हो जाती है और ये बहुत चल रहा है। रही बात कमिंग टू योर पॉइंट, आपके अपने योर पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली वैलिड। अब अगेन मैं सबको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो चीज़ चाहिए पहले पहले डिसाइड कर लो, रादर देन गेटिंग समवन और फिर अभी इसको मैं यूं करके मोल्ड करूँगा। जब यूं करने की करते ना तो फिर 2 साल बाद यहाँ ईमेल्स आ रही होती हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि शुड आई कंटिन्यू दिस मैरिज, ये हो रहा है वो हो रहा है, ज़बरदस्ती है वगैरह वगैरह। मतलब पहले ही डिसाइड कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान को पहले खुद पता होना चाहिए इसको चाहिए क्या। हमारे यहाँ कहते हैं यार पहले ले आओ फिर देखेंगे करना क्या है उसका। यही हो रहा है। अभी मैं एज आई वॉज ब्राउजिंग थ्रू ईमेल, जब ये कैमरा वैमरा सेटअप हो रहा था, इतनी सारे वही 23-24 के लगे हुए हैं शादी वादी। यार हमारे बच्चों की ना प्रायोरिटीज़ ही गलत है। पहले पैसा हो, पहले पैसा फिर आप बंदी लेकर आए, या उल्टा कि यार उसके नसीब का लेकर आऊँगा मैं। भाई तो तू तेरे अपने नसीब का तो लेकर आ पहले, जो तेरे नसीब में वो तो कमा पहले। नहीं जी वो और फिर बच्चा कर लेंगे, बच्चा अपने नसीब का लाएगा, तू क्या ला रहा है वो नहीं सोच रहे। प्रायोरिटीज उल्टी हैं। पहले यू हैव टू बिल्ड अ गार्डन एंड देन यू गेट बटरफ्लाइज इन द गार्डन। उल्टा चलते हैं, विच इज़ वाई द सोसाइटी सफरिंग। भाई कितने बेरोजगार लोगों की शादियाँ हो जाती हैं यहाँ पे, हैं किस चक्कर में कि सर पे जिम्मेदारी बढ़ेगी, कर लेगा काम। तुक्के जुए चल रहे हैं, जुए। जाहिर बात है वो बच्चा तो फौरन कर लेते हैं, कॉन्डम चढ़ाना ही नहीं आता, नहीं आता, वाकई नहीं आता। भाई केले पे प्रैक्टिस कर लो पहले, नहीं आता चढ़ाना। और फिर उस सिचुएशन में तो और नहीं आ रहा होता। केले पे तो जब आप रिलैक्स बैठो ना, यूँ कर लिया, उस सिचुएशन में तो बंदा कहता है भाई जल्दी जल्दी जो भी है। एनीवे तो आपका बिल्कुल सही है भाई, ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं और आपको इसमें चाहिए। और आपका कंसर्न ऑब्वियसली जितना पाकिस्तानी कल्चर से या पाकिस्तानी सोसाइटी से आपका वास्ता रहा है, उसमें ज़्यादातर तो यही रेड फ्लैग्स हैं जो आपने सारे मेंशन किए हैं, एंड विच इज़ ट्रू। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें लाइक यू नो अ वुमन इज़ विलिंग टू डू हर पार्ट एंड लाइक समवन हुज करियर ओरिएंटेड। क्योंकि बहुत से जो है यहाँ पे कोशिश ही होती है, अगेन उसमें अगेन औरतों का कसूर भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो सोसाइटी यहाँ पे है ना वो इतनी है, मतलब इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर अ वुमन टू मूव अराउंड, तो दे चूज़ कि यार आई जस्ट सिट एट होम, मुझे रोज़ की नहीं झेलनी, मैं बस में भी मुझे नज़रों से घूरे बंदा, दफ्तर में भी मुझे तंग करे। चूँकि यहाँ उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, सो दे चूज़ द ईजी वे आउट कि भाई मैं घर में संभाल लूँगी, यू डू द वर्क, राइट। तो ये पूरी सोसाइटी की एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाई किसी और नहीं करके देना है। सो फिर वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी टर्न्स इनटू टॉक्सिसिटी, बिकॉज जब बंदे को पता होता है ये तो मेरे बगैर कुछ भी नहीं और घर वाले मुंह नहीं लगाएंगे, तो फिर वहाँ से सारा अब्यूज़ शुरू होता है। हेंस कितनी ईमेल्स हो गई हैं, 10,500 ईमेल्स। सो या ये होता है इस तरह। और ये भी बहुत रेयर होता है कि जहाँ ख़वातीन ऐसी भी हों जो कि हु आर विलिंग नॉट टू हैव किड्स। होती हैं ऐसी, सब कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ नहीं होती कि हमें बच्चे करने हैं, या फिर ये कि चलो अपने नहीं करने, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन आउटसाइड दैट कैन बी अडॉप्टेड। तो इस तरह के माइंडसेट के लोग बहुत कम ही होते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते। फिर इस पे यही हो सकता है कि अरेंज मैरिज इज़ ऑब्वियसली नॉट अ सोल्यूशन फॉर यू, बिकॉज उसमें द चांसेस आर आपका और दूसरों का वक्त ज़ाया होगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको वही मिलेंगे जो आपने रेड फ्लैग्स अपने डिफ़ाइन किए हुए हैं। फिर उसमें यही हो सकता है कि लाइक इफ़ यूर ऑन एन ऐप, कोई शादी वाली ऐप या इस तरह की किसी चीज़ में, वहाँ पे आप यही पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करके लगाते कि मुझे ये चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर देयर आर पीपल आउट देयर हु आर लाइक दिस, बट ये कि चूँकि बहुत रेयर है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक having a very nice Christian boy in Karachi. I mean, पहले इतने कम है तो उसमें से it's very difficult to find. Same for Hindus, or same for any minority living anywhere in the world, right? मगर ये कि अब चूँकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा आसान है। पहले आप रिलाय करते थे आंटीज़ पे, आंटीज़ को इतनी सारी बातें समझाना, फिर उनका रजिस्टर लेके घर घर जाना और दिखाना कि भाई ये मैच हो रही है। अब तो एटलीस्ट यू हैव टेक्नोलॉजी, यू हैव एप्स, यू हैव सोशल मीडिया, यू कैन मीट पीपल ऑनलाइन एंड यू कैन हैव डिस्कशंस। वही आपने जो बात की फियांसेस को बात नहीं करने देते, तो फॉर यू व्हाट आई सी इज़ कि यू नीड टू मीट समवन ऑन योर ओन एंड देन ले डाउन कि भाई ये है और मैं इस अप्रोच से आ रहा हूँ।
सो इफ़ यू फॉल फॉर दिस देन वी कैन लुक इनटू दिस. अगर नहीं भी मिलता तो डोंट फोर्स योर सेल्फ इनटू अ रिलेशनशिप के ओके चलो मैं फिर खुद ही किसी को चेंज कर लूँगा. वो भी गलत होता है. एंड आई एम प्रीटी श्योर यूर लाइक डिसेंट इनफ एंड educated enough not to do that. And secondly, जैसे आपने बोला कि should I marry outside my culture, that's fine as well. मगर जो आपके दोस्तों ने कहा कि the cultural differences will cause an inevitable divorce, that's not true. I mean, there's so many lovely couples out there. बात सारी वो होती है कि जब आपने शुरू में चीज़ें डिफाइन कर दी तो फिर बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप वादा कुछ और करते हो फिर बाद में आप कुछ और इम्पोज करते हैं. दैट्स वेयर द पर्सन इज़ लाइक ओके आप ऐसे तो नहीं थे पहले एंड देन लाइक ये फिर इससे करते 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 बात बढ़ती है. पहले आप बात डिफाइन कर लें, थिंग्स वर्क आउट जस्ट फाइन. आई जस्ट मेट अ लवली कपल, अ पाकिस्तानी लेडी एंड अ रशियन हस्बैंड. दे गुड फ्रेंड्स. तो दे बिन डूइंग फाइन. तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. तो ये कोई बात हुई कि वो तुम्हारा कल्चर नहीं समझेगी तो वो पाए नहीं बनाएगी तो ये नहीं करेगी वो नहीं, ऐसा नहीं होता. आई मीन इफ़ यू रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स ईच अदर, आप अपना काम कर रहे हो, if you have something to look forward to, this is what keeps marriages alive. If you have a common goal towards something, everything else fades away. Common goals are something that keeps it alive. And you sound someone like a very practical person. और जो आप ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ भी एक प्रैक्टिकल खातून रहे हैं. नॉट लाइक के जिसने घर पे बैठ के स्टार प्लस के सास बहू के ड्रामे देखने हैं, बट समवन हुज करियर ओरिएंटेड एंड फोकस्ड इन लाइफ. तो ऑब्वियसली चांसेस आर थिंग्स विल डू वेल. और एज फार एज नॉट वांटिंग किड्स, अगेन दैट्स अ पर्सनल चॉइस. ज़रूरी नहीं है सबके होने चाहिए और सबको चाहिए भी नहीं होते. सो एक टिपिकल पाकिस्तानी माशरी सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से तो आप बिल्कुल एंटी हो. बट अगेन यू आर नॉट रॉन्ग आइदर. आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग. पाकिस्तानी कल्चर थोड़ा ही टॉक्सिक और उसको तो खैर बहुत सारी इंट्रोस्पेक्ट की ज़रूरत है जो कि वो नहीं करना चाह रहे. बट इट्स ओके इफ़ यू हैव स्टेप्ड आउट ऑफ द होल एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द ब्रेन वॉश्ड माइंड सेट. तो इट्स गुड एंड आई विश यू वेल. आई एम रियली हैप्पी टू नो समवन हु नोज़ व्हाट ही वांट्स. क्योंकि यहाँ तो सारी ईमेल्स दी होती है, मुझे पता नहीं करना क्या है. तो good to know that you know what you want. I wish you well. I hope you do find someone. It's a beautiful feeling and it's lovely to have a companion, someone to, look forward to and rely on, have a shoulder. So yeah, I wish you well and keep up the good work. Take care. Bye. हाँ जी, next one, caught between Eastern and Western values. Junaid Bhai, thank you so much for reading this email. I'm a 30-year-old living in Australia and working as a software engineer. When I first came here 6 years ago, I gradually started to drift away from Islam and towards atheism. About the same time, my elder brother, who I live with, started to become serious about Islam, eventually ended up becoming super religious. Fast forward to today, I have stayed closeted about my belief, always fasting during Ramzan and praying when I have no way out. मतलब छुप के करना. I knew someone जो कि who was an atheist यहाँ कराची में. वो अब्बू के साथ फजर पढ़ने आते थे क्योंकि बाप घर से निकाल देता अगर नहीं पढ़ता. हाँ, ईद की नमाज. हाँ, मैं ऐसे को भी जानता हूँ जो खाना काबा गए उम्रा करने लेकिन किया कुछ भी नहीं. हाँ, होते हैं ऐसे लोग दिखाने के लिए या सोसाइटल प्रेशर या ये कि घर वाले जा रहे थे अब घर वालों को बता नहीं सकते. होते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल होते हैं. अल्लाह हिदायत दे भाई सबको. मैं तो यही कहता हूँ. वही ना, बचपन में पढ़ते थे दिलों में ताले पड़ जाते हैं, ये इसी को तो कहते हैं. खैर, सबका अपना अपना है भाई, अब क्या कर सकते हैं. Junaid Bhai, being the youngest sibling in my family, I have felt I have always been under pressure from my family to listen to what they have to say and obey since they are old, so they must always be right. It has terribly hurt my self-confidence and self-expression growing up. I always wish I could critically discuss ideas and disagree, but have always been rebuked and shunned when I tried. Given that background, I know my family will never accept me if I mention my doubts with religion. I once tried to mention it to my mom that I'm considering moving out of my elder brother's house in hopes of living life on my own terms, but she threw the typical desi tantrum that moms do. लोग क्या बोलेंगे, दोनों भाई एक ही शहर में रहते हैं फिर भी अलग अलग.
तुम्हारे दिमाग को अचानक क्या हो गया है, शादी से पहले कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. ऑल्सो एडिंग टू माई fears, my family is considering finding a pious wife for me. I cannot fathom the idea of marrying someone that I don't and would instead want to go for marriage via the Western notion of dating culture. I don't mean fucking ladies around, but just getting to know someone and developing a bond first. लेकिन ये बात मैं अपनी फैमिली को बताऊंगा कैसे, समझ नहीं आती. बोलूंगा तो ये होगा कि बहुत बाहर निकल रहा है आपे से. जुनेद भाई, यहाँ आके इतनी मेहनत की है और जॉब्स, तालीम और करियर में. आई थॉट मूविंग अब्रॉड आई कुड लिव अ गुड लाइफ, बट आई इंस्टेड डेवलप्ड क्लिनिकल डिप्रेशन एंड perpetually live in pain. My brother is always hovering around me like a demon. नमाज पढ़ी कि नहीं, ये बिस्किट हलाल नहीं होते, देख के नहीं ले सकते, शैम्पू में पिक के ट्रेसेस हैं, फेंक दो, अपने बैंक अकाउंट को नॉन इंटरेस्ट हलाल ऑप्शन पे चेंज करो, कुरान की क्लासेस लेना शुरू करो, वरना ऐसी ज़िंदगी बेकार है. एंड आई जस्ट साइलेंटली नॉट टू ऑल ऑफ द अबव. माई इनर सेल्फ इज़ एकिंग टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस. Junaid bhai, it is very painful to be picked upon by family as if I was still a child. I know you will suggest that I should start communicating more, and I should, but being with an obsessive brown family, I know there will always be conflicts, chikho pukar and hatred. It's hard to even think of confronting my brother since he's taken care of my food, school fees growing up, as my dad was out of work for a long time. I know writing all of the above, your audience will begin to judge, but I just wish that in our societies we could build a culture of listening to each other with empathy and have tolerance as you do, Junaid bhai. Have meaningful debates and discussions. मुझे इस्लाम से कोई नफ़रत नहीं है. इनफैक्ट आई डू थिंक सम एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम आर क्वाइट कमेंडेबल. लेकिन मज़हब के मामलात पे डिस्कशन, सेक्स, जेंडर ओरिएंटेशन, फीमेल एम्पावरमेंट आर ऑल टाबू टॉपिक्स दैट मस्ट बी केप्ट हिडन. Been a long one, sorry I had to end. Please do suggest your thoughts on how to get myself out of this. Thank you once again. Thank you for your email and mustering up the courage to write all what you did. मेरी नज़र में, I mean not मेरी नज़र में, I mean it's a fact, इतनी तेज़ी से लोग जो है ना रिलीजन को छोड़ें, और उसकी वजह रिलीजियस लोग हैं, मगर लोग ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ बड़े आराम से बोला जाता है बच्चे दीन, आजकल के बच्चे दीन से दूर है. आजकल के बच्चों को दीन से दूर कौन करता है? बड़े लोग करते हैं. क्योंकि जब बच्चा पहली सफ़ में नमाज पढ़ता है, क्या करते हैं बड़े उनके साथ? पीछे चले जाओ, धक्के देते हैं. अगर बच्चे खेल रहे हैं, डांट डपट करते हैं, हाथ भी उठाते हैं. टर्की में तो वो कुछ भी नहीं कहते. टर्की में तो वो कहते हैं बच्चे खेलें. वो तो चाहते हैं बच्चे खेलें. जब नमाज खड़ी होगी तो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसको एहसास हो जाएगा यार सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा. मकसद है बच्चों को मस्जिद में लाना. बाहर मुल्कों में, अमेरिका में मस्जिद के साथ बास्केटबॉल कोर्ट होता है, स्विमिंग पूल भी होता है. स्विमिंग पूल मैंने उसके साथ देखा है, सिनेगॉग के साथ, जो यहूदियों का होता है ना टेम्पल, उसके साथ स्विमिंग पूल होता है. बच्चे स्विमिंग करने आएंगे, साथ ही साथ इधर भी आ जाएंगे. ये लाने के तरीके होते हैं. हमारे यहाँ मस्जिद के साथ खोल देते हैं दुकान कि किराया आता रहे मस्जिद को. मस्जिद की बाउंड्री में दुकानें खोल देंगे. प्लेइंग का कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट. और ये जितने बड़े होते हैं, मुझे खुद पता है यार, मैं भी जाता था. अब मैं टी शर्ट में जाता था, ठीक है. तो अब वही वाली बात है जैसे इसने कहा ना कि हमारे यहाँ वो प्यार से बात नहीं की जाती इन मामलात पे. मैं टी शर्ट पहन के चला गया यार. मैं 4 क्लास में था, 5 क्लास में, और मैं 4 वक्त का पूरा नमाजी था. फजर में मुझे डर लगता था अकेले जाने में, अंधेरा होता था. 4 क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है? ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में बाकायदगी से पढ़ता था. अब मैं, वो अम्मी ने किसी दिन टी शर्ट दे दी, मैं पहन के चला गया. उस पर कुछ बना होगा कोई. यार मुझे अंकल ने इतनी बुरी तरह झाड़ा, मैं रोता हुआ घर आया. उसके बाद मैं गई नहीं मस्जिद. काफ़ी अरसे तक मैंने जाना ही छोड़ दिया. मैं घर पे पढ़ लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे इस तरह के. तो ये बड़े लोग करते हैं दीन से दूर. फिर इस तरह प्यार से बात नहीं सुनते, फ़ौरन फतवेबाजी, तुम ये हो, तुम वो हो. उससे फिर लोग क्या देखें, जब आप ऐसा माहौल बनाएंगे ना जहाँ बातचीत हो सके. अब बच्चों के अंदर आते हैं डाउट्स, ख़यालात आते हैं. इंसान जब सोचने लगता है ना तो वो 10 चीज़ें सोचता है. हर तरफ दिमाग जाता है उसका. तो जब वो डाउट्स लेके उसी के पास जाएगा जो कि प्यार से और तहम्मुल से उसकी बात सुनेगा. यहाँ तो सीधा होती है फतवाबाजी, उतारो इसकी गर्दन, ब्लास्फेमी कर दी इसने.
तो फिर लोग क्या कहते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं, और ये वाला बिहेवियर जो है ना उनको और पक्का करते हैं कि यार ये तो खुद झूठे हैं। अगर ये कहते हैं कि इनका इनका दीन अमन का दीन है, तो ये तो खुद अमन वाले नहीं है, ये तो खुद शिद्दत पसंद है, समझ रहे हो। तो जब इनका दीन इन्हें ही नहीं चेंज कर सका तो मुझे क्या करेगा। इससे लोगों का और पुख्ता होता है कि हमने छोड़ दिया, हम सही हैं। जब तक हमारे रवैये अच्छे नहीं होंगे, एम्पैथी नहीं आएगी, बैठ के बात नहीं करेंगे, इस बच्चे से कुछ भी नहीं है। इसके साथ बैठ के आपने सिर्फ किसी किसी अच्छे आलिम ने, जिसको अंडरस्टैंडिंग हो, जो समझता हो, जो कि जजमेंट ना रखे, क्योंकि जजमेंट अल्लाह का काम है, ठीक है ना, समझाना इंसान का काम है। तो 15 मिनट में आप इसको माइल कर सकते हो। और जैसे हज़ारों बच्चे पाकिस्तान में हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है या बॉर्डर के उस पार निकल गए, उनको आप बड़े आराम से प्यार से बात समझा के ला सकते हो। लेकिन प्यार से बात कौन करे, या तो सीधा फतवाबाजी करते हैं। तो ये जितनी लोग मज़हब से दूर हो रहे हैं, उसको दूर करने वाले मजहबी लोग हैं, और कोई नहीं है। किसी यहूदी ने आपको बोला नमाज नहीं पढ़नी, किसी ने आके कुछ किया, या कोई इंडिया से आ रहा है कोई हिंदू आके बोल रहा है कि जी ऐसे नहीं करो, छोड़ दो, रोज़े नहीं रखो, ये नहीं करो, ये अंदर से ही आता है। ये गलत तरीके हैं, गलत रवैये हैं, जिसकी वजह से दूर हुए हैं। बच्चों के लिए आप अच्छा माहौल बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे तो सेफ़ भी नहीं होते। कितने वाक़यात हम सुनते हैं मदरसों के जो हो जाते हैं, बच्चे तो भागते हैं। मतलब इतनी नॉर्मलाइज हो गई है। तुमने वो देखा है, वो मीम चलता है, मौलवी कारी साहब और हमज़ा। ये कारी साहब और हमज़ा क्या है? वो गाना बनाया हुआ है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, और हमज़ा मेरे पास आ जाओ, इस तरह के। ये क्या है? हमने इसको मजाक बना दिया, लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है और अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन ये हकीकत है। ऐसा माहौल होगा जहाँ जब तक खुदा बनना नहीं छोड़ेंगे ना लोग, ये मसले मसाइल रहेंगे। अब जैसे उसको कह रहा है शैम्पू में ये है वो है, ये बात अगर आप प्यार से भी बोलो, वो प्यार से सुन लेगा। क्यों नहीं सुनेगा इंसान प्यार से बात? मगर आप जितना उसके, ये इंसानी फितरत होती है, जितना आप उसके ऊपर रोब जमाओगे, डांट डपट करोगे, फिर वो अंदर से और रिबेलियस होता है, वो फिर बोलेगा मैं और करूँगा। तो हमारे अपने बिहेवियर लोगों को दूर कर रहे हैं। कोई यहूदी साजिश नहीं हो रही, कोई अंग्रेज़ आके नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं। और ऑब्वियसली फिर इस तरह का जो माहौल है वो फिर घुटन साबित होता है, फिर ज़ाहिर है बंदा डिप्रेशन में आता है, जैसे आप चले गए हो। तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। वही वाली बात जैसे मैंने शुरू में की, ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। बैलेंस, इस्लाम तो नाम ही मीज़ान का है भाई, मीज़ान बैंक थोड़ी है खाली। बैलेंस, हर चीज़ बैलेंस, दुनियावी ज़िंदगी, दीनी ज़िंदगी, बैलेंस रखना है। लोग इतना आगे निकल जाते हैं किसी एक साइड पे या किसी दूसरी साइड पे, बैलेंस नहीं कर पाते, फिर उसका रिजल्ट इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मैं अमूमन लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि भाई आप कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, क्योंकि बातचीत से ही हल निकलते हैं। आपका भाई दोस्त जमाएगा वो अपने उसमें, आप फिर अपने अंदर रिबेलियस होकर फिर बात कहीं जाएगी नहीं, बात वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। मगर बंदा बात वहाँ करता है जहाँ सामने वाला भी कोई रीजनिंग शो करे, रीजनेबल इंसान हो, किसी किस्म की वो शो करे कि हाँ बात की जा सकती है, तभी बात होती है। लेकिन जिस तरह का आप माहौल बता रहे हैं कि आप पे फैमिली की तरफ से भी इतना प्रेशर है और ये सारी चीज़ें, अब आप जैसे कह रहे हो कि आप पे ऊपर शादी का भी प्रेशर है और अम्मी कोई पायस किस्म की बीवी ढूंढ रही हैं, तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग में या डराना और धमकाने से शादी मत कर लेना। अच्छी तरह अपने हिसाब से देखना भाई, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हों, और शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है, आपकी अम्मी ने नहीं गुजारनी, आपके भाई ने नहीं गुजारनी। तो कोई ज़बरदस्ती का वो नहीं कर लेना, वरना फिर सारी ज़िंदगी पछताओगे। और फिर इसमें शादी एक ऐसी चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी में जो आपको हमेशा के लिए मेक या ब्रेक कर सकती है, एंड देन यू कैन नेवर रिकवर फ्रॉम आइदर। सो इसको आसान ही लेना। हमने इसको बहुत बड़ा मजाक बना लिया कि चलो जी ढोल ढमक्का हो। असल में हमने अपनी सारी खुशियाँ शादी में डालनी। हम वैसे तो एंजॉय कर नहीं सकते, हर चीज़ हराम है, तो हमने हर हराम चीज़ को ऑल्टर करके शादी में घुसेड़ दी, और फिर वो हम धूम धड़के से बगैर सोचे समझे करते हैं ताकि एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉय करना इंसान की फितरत में, और फिर उसका फिर ये रिज़ल्ट निकलता है। तो बाकी ये कि सवालात अपने अंदर ज़रूर रखें और उनको ढूंढें। भाई से नहीं मिलता जवाब, किसी आलिम से पूछ लें जो भी आपके डाउट्स हैं। आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे इस्लामिक सेंटर्स भी होंगे, और वो लोग ज़रा, मैंने जितना मेरा तजुर्बा रहा है, वो थोड़े से
रीज़नेबल होता है एज़ अपोज टू जो हमारे पाकिस्तानी मौलवी होते हैं, क्योंकि वो जिस माहौल में पले बड़े होते हैं वहाँ पे अव्वल तो आप शिद्दत पसंदी कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे आपने, क्योंकि वहाँ पे वो कन्वर्जन का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बड़े धीमे तरीके से और बड़े आराम से सुनते हैं बात, हर किस्म के डाउट लेके, हर किस्म के सवालात लेके, हर किस्म के कंट्रोवर्शियल सवालात लेके लोग मस्जिद में आते हैं, मगर वो आराम से जवाब देते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर रिफ़्लेक्ट करें या फिर किसी से मशवरा करें, और दुआ ही कर सकते हैं यार आपकी फैमिली के लिए, आपके भाई के लिए, कि आपको इतना प्रेशर में न डालें कि आप किसी ऐसे मकाम पे निकल जाए जहाँ से फिर वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो। अगेन लाइक आई सेड, हमारे अपने बिहेवियर लोगों को दूर करते हैं। कोई यहूदी साजिश नहीं आती, कोई ऊपर से कोई नहीं आता, होली ट्रिनिटी नहीं आती, या कोई होली स्पिरिट आके मुसलमानों को दूर नहीं करता। ये हम खुद करते हैं एक दूसरे को दूर अपने बिहेवियर से। अगर हम अपना बिहेवियर सही कर लें, हमारे आधे मसले हल हो जाएं। लेकिन चूँकि हम सुनते नहीं हैं किसी की, हम चोज़न वन है, हम सब अपने में एक चोज़न वन चल रहा है, और हम सबको सब पता है, और हम सब जिन चीज़ों में बिलीव करते हैं हम खुद उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं सब उस चीज़ को फॉलो करें। तो ये थानेदारी जो हमने हमारे माशरे में घुस गई है, हर बंदा एक थानेदार है जो चलते फिरते आपको चेक कर सकता है, आपका शलवार ऊपर है, आपका दुपट्टा सही नहीं है, आपके बाल ऐसे क्यों हैं। जब जिस मुल्क में सारे थानेदार बन जाए ना, वहाँ फिर सिर्फ केओस होता है। इसीलिए पूरा मुल्क पुलिस स्टेशन नहीं है, सिर्फ गिने चुने लोग पुलिस में होते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग भी होती है, उनको कानून समझाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, ओनली दे कैन क्वेश्चन। मगर यहाँ इस मामले में सब थानेदार हैं। आप मुझे चेक करते फिरेंगे, आपने सलाम ऐसे नहीं किया, या आपने वो ऐसे नहीं किया, या आपने ये ऐसे नहीं किया। अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह सारे ही बने हुए हैं, और क़यामत का हिसाब किताब चल रहा होता है कमेंट सेक्शन में। जिसको देखो वो अव्वल दर्जे का मौलवी है, मगर ना उनमें वक्त की पाबंदी होती है, ना उनमें उनकी आम ज़िंदगी में ना उनमें सफाई सुथराई होती है, ना उनमें उनकी ज़बान में शाइस्तगी होती है, ना वो वक्त के पाबंद होते हैं, ना वो लेन देन में अच्छे होते हैं। तो फिर बचा ही क्या भाई? इस्लाम खाली दाढ़ी का और शलवार ऊपर करने का नाम थोड़ी है, बिहेवियर का नाम है। कल मैं एक कोट पढ़ रहा था हज़रत अली का, उसमें एक आई थिंक एक साहबा ने आके उनसे पूछा कि मैंने फ़लानी जगह जाके तबलीग करनी है या किसी को मुसलमान करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन कोशिश करो तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज़ ना निकले उसको मुसलमान करने के लिए। मीनिंग कि तुम्हारा बिहेवियर इतना अच्छा हो कि अगला बोले यार ये इतना ज़बरदस्त बंदा है। समझ रहे हैं? अपना बिहेवियर सही करें। लगे पड़े कमेंट 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 करने में, दूसरी विंडो में क्या कर रहे हैं, दूसरे में इनबॉक्सों में घुसे होते हैं। और आप ये भी चीज़ नोटिस करें, आप जितने भी ये फीमेल एक्ट्रेसेस हो गई, या हम में से भी यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स की कमेंट सेक्शन में जो सबसे गलीज़ तरीन गालियाँ देता ना, आप उनके प्रोफाइल पे क्लिक करें, हदीसें लिखी होंगी, कवर फ़ोटो पे हदीस होगी, मक्का मदीना की तस्वीरें होंगी। तो जब आपको आपका दीन यही नहीं सिखा सका कि किसी से बात कैसे करनी है, तो फिर आप पहले तो खुद सीखें फिर दूसरों को सिखाएं। मगर यहाँ पे उल्टा ही हिसाब है। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा। खैर यूट्यूब पे तो वो नहीं आता प्रोफाइल किसी का, मगर यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो बस भाई, सारे थानेदार हैं इस मुल्क में, क्या कर सकते हैं। और ये थानेदारी जो है ना, ये इतना पीछे ले जाएगी कि आपकी सोच है। एंड लाइक हम एक कल्चरल डिमाइस का शिकार तो है, और उसकी वजह ये है कि हमने इस्लाम की में से क्या पकड़ा, 4 शादियां पकड़ ली, ये पकड़ लिया, मगर जो बेसिक चीज़ है वक्त की नमाज क्या सिखा यार? नमाज से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। इट टीचेज़ यू वक्त की पाबंदी, इट टीचेज़ यू पाक साफ रहना, इट टीचेज़ यू डिसिप्लिन, लाइन में लगे रहना। ये नमाज का मकसद, अल्लाह मियाँ को मस्जिद में लोग नहीं चाहिए थे या मौलवी नहीं चाहिए थे बहुत सारे। ये चाहिए था कि एक ऐसी चीज़ हो, ऐसी एक्सरसाइज हो जिसको लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें, तो वो एक अच्छे इंसान बने। तो नमाज में जब आप सफ़ बनाते हो, डिसिप्लिन ना, अब आप नेशनल बैंक की लाइन में देख लो, कोई डिसिप्लिन होता है? इमिग्रेशन की लाइन में कोई डिसिप्लिन होता है? सफाई सुथराई की बात, आप 5 बार वज़ू करते हो, मगर आप देख लो लोग अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, गंदे कपड़े होते हैं। और वक्त की पाबंदी, तो अब आप दुनिया का कोई शादी कार्ड उठा लें, बारात 7:30 बजे, निकाह 8 बजे, डिनर 9 बजे, दूल्हा आता है 11:30 बजे। तो क्या सीखा आपने?
जब आपको नमाज से आप यही चीज़ें नहीं सीख सके तो फिर सीखा ही क्या आपने? ज़मीन पे सर थोड़ी मार, अल्लाह को क्या चाहिए? तुम ज़मीन पे सर मार के अल्लाह का क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो जाएगा अल्लाह का? कुछ भी नहीं चाहिए उनको। द आइडिया ऑफ नमाज वॉज कि भाई ये चीज़ें यहाँ अप्लाई करनी, कुछ सीखा ही नहीं। सीखा कुछ है नहीं, सिखाने सबको आगे आ जाते हैं कमेंट में। तो खैर चले यार, आई प्रे फॉर यू और अपना ख्याल रखिएगा और आई होप थिंग्स गेट बेटर फॉर यू। सो चले भाई, आज के एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं, सोना भी है, बड़ी नींद आ रही है। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी विद अदर ईमेल्स बहुत जल्द। पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हो और patreon.com/ganjiswag और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड आई विल सी यू सून। खुदा हाफिज़।